अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नफरत इंतहा पसंदी की सियासत अपनी मौत आप मर गई और अब की बार 400 पार के सपने मिट्टी में मिल गए। भारत इंतखाबात, मोदी के बयानिए को बदतरीन शिकस्त। मोदी वजीर आजम बनेंगे या नहीं, फैसला इत्तेहादियों के हाथ में। कंट्रोल, क्योंकि इस फ्रॉडिये ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने धक्के में जमीबोस कर दिया। इस फ्रॉडिये के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। ये क्या बात करता है यार? हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडिये ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন দীপ ইনফরমেশন। তো বন্ধুরা, ভারতের নির্বাচনের ফলাফলকে নিয়ে কি হয়েছে সেটা আপনাদের নতুন করে বলতে চাই না, কিন্তু ভারতের বর্তমান সময়ে বিজেপি সরকার নির্বাচনে যে ফলাফল এসেছিল, যে টার্গেট রেখেছিল, সেই টার্গেটকে অ্যাচিভ তো করতে পারেনি, মানে এককভাবে সরকারকে গঠন করতে পারেনি। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে বিশেষ করে পাকিস্তানের মিডিয়া অনেক খুশি। এমনকি একরকম বিজেপির দুর্বল পারফরম্যান্সের জন্য তারা তাদের নিজেদের দেশের মধ্যে বা কট্টরপন্থীগুলো তারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছে খুশির আনন্দে। বুঝতেই পারছেন তাদের হাইপটা কোন লেভেলে ছিল। যাই হোক, এখন এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ফিজা খান তারা দাবি করেছে যে ভারত এখন কোনো ক্ষমতা, বিশেষ করে বিজেপি পার্টি থাকা অবস্থায় এখনো পর্যন্ত 2 বছর আগে যখন নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো একাই নিত, সেই রকম কোনো স্ট্রং বা ডিপলি ভাবে কোনো সিদ্ধান্তকে একা নিতে পারবে না, বা বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো কখনো একা নিতে পারবে না। তাই এখন এই বিষয়টাকে নিয়ে তারা অনেক খুশি। এমনকি তারা এটা পর্যন্ত বলছে, এমনকি বিজেপিকে নিয়ে যত রকম কটাক্ষ কথা আছে সমস্ত রকম কিছু তারা বলতে ছাড়ছে না। এমনকি তাদের দাবি এটাও আছে যে বিজেপির যে একক তন্ত্র ক্ষমতা ছিল বা রাজনৈতিক তন্ত্রের মতন যে একটা পুরো ক্ষমতা ছিল, সেই রাজনৈতিক তন্ত্রকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। এবার থেকে যখনই কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তখন পাকিস্তানের উপর চাপে থাকবে, কেননা পাকিস্তান এমন কিছু করতে চলেছে যেটাকে দেখে ভারত কোনো সিদ্ধান্ত নিতেই পারবে না। আর ভারত কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই রাখে না এখন। যাই হোক, বর্তমান সময়ে আজকের দিনে বিজেপি পার্টি যে আবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে, আর এখন যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হবে সেটা কিন্তু ভারতের বিজেপি পার্টির তরফ থেকে একা নিতে পারবে না। ভারতের এই বিজেপি পার্টির হারকে নিয়ে বর্তমান সময়ে ফিজা খান যত রকম কটূক্তি মন্তব্য থাকে কোনো কিছুই কিন্তু করতে ছাড়েনি, কিন্তু এই মুহূর্তে তাদেরও ঘরের ভেতর নিজেদের দিকে, মানে সোজা কথায় বললে নিজেদের পিছড়াটা একবার দেখা উচিত, কেননা নিজেদের দেশের ঘরের ভেতর এই ভোটকে নিয়ে কি হয় আর রাজনীতি নিয়ে কি চলছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একবার নয় 3-3বার নিজের জায়গাটাকে ধরে রাখতে পেরেছে, কিন্তু তাদের দেশে 3-3বার তো দূরের কথা, কোনো প্রধানমন্ত্রী স্ট্রংলি 3 বছরের পর্যন্ত তার কুর্সিকে ধরে রাখতে পারে না। 3 বছরের মধ্যেই আবারও সেখানে নতুন লোক চলে আসে। যাই হোক বন্ধুরা, পুরো ভিডিও ক্লিপটাকে দেখে নিন। उन्हें फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडिये ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने धक्के में जमीबोस कर दिया। इस फ्रॉडिये के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडिये ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं, और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बददुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वजीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वजीर आज़म बन भी जाए, लेकिन
मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो खत्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं इन रिजल्ट पर अब नजर डालें तो जो कांग्रेसी इत्तेहाद है उसने इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है और मोदी की जो इंतखाबी इत्तेहाद के मुकाबले में अब तक की 240 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। अगर 2019 के मुकाबले में देखें जब कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों ने सिर्फ आपको याद होगा 91 नशिस्तें जीती थी तो ये बड़ी कामयाबी है। और दूसरी तरफ जो मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद है महज 292 जो नशिस्तें वो हासिल कर पाया है। अच्छा, अगर सच पूछे ना तो इस फ्रॉडियन ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जिसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी इसके यार खास कह लें गौतम अडानी उसका हुआ है, जिसके आप जरा सुनते जाइएगा 69 खरब 64 अरब रुपए डूब गए हैं, जिसे एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी करार दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को खरीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अब यकीनन सारे कहीं मेरे ख्याल से अकेले बैठे आंसू भी बहा रहे होंगे, कितना नुकसान करवा लिया, और मोदी को यकीनी तौर पे गालियां भी निकाल रहे होंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। हराम काम और हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे कि इन लोगों का हुआ है। अच्छा, वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना वो मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाये इंडिया के साथ कर ले। तो বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো আর ফিজা খান সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ফিজা খান মনে মনে অনেক আনন্দিত। ফিজা খান ভাবছে যে বিজেপি সরকার এবার যতই ক্ষমতা থাকুক না কেন তাদের উপর মানে বিজেপি সরকার এখনো পর্যন্ত 2 বছর ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের উপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক থেকে শুরু করে ঘরের ভেতরে ঢুকে যে স্ট্রাইক করেছিল সেই সমস্ত সবকিছু করার মতো এবার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু ফিজা খান হয়তো ভুলে গেছে যে এবারে হয়তো বিজেপি এমন কিছু শক্তপোক্ত কাজগুলোকে করবে যে সমস্ত কাজগুলো এককভাবে থাকা অবস্থায় করেনি বা করতে চায়নি। কিন্তু এই আনন্দ যে তাদের বেশি দিন থাকবে না সেটাও তারা জানে, কেননা ভারতের বিজেপি পার্টিকে আসুক বা যে পার্টি ক্ষমতায় আসুক না কেন আমাদের যে ফরেন পলিসি বিশেষ করে পাকিস্তানের উপর সেই ফরেন পলিসি কিন্তু একদমই চেঞ্জ হবে না। আর এই কারণে চেঞ্জ হবে না কারণ আমরা জানি যে এই ক্ষমতায় থাকা সরকার যদি পড়ে গিয়ে যদি কংগ্রেস সরকার চলে আসে তাহলে আবার সেই পুরনো স্মৃতি বা পুরনো দৃষ্টি আমরা দেখতে পাবো, যেমনটা কাশ্মীরে ভেতরে কংগ্রেস সরকার থাকা অবস্থায় আমাদের সেনাবাহিনী শহীদ হওয়া থেকে শুরু করে লাগাতার ধামাকা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যেত। সেই সমস্ত ঘটনাগুলো বিজেপি সরকার আসার পরে থেকে লাগাতার সেটা কমে একদম জিরোতে চলে এসেছে। তাই পাকিস্তান এই মুহূর্তে যেনতেন উপকারে চায় বিজেপি সরকার একদম গায়েব হয়ে যাক আর তাদের হাতের পুতুল সরকার তৈরি হোক, তাহলে তাদের মন মতন কাহিনীকে তারা বানাতে পারবে। যেটা বন্ধুরা পুরো ব্যাপারটির উপর আপনাদের কি মতামত সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।